Class 8, Chapter 1, Exercise 1.1. Use appropriate properties to find the value of this one. Okay. Now see here how many terms are there. 3 terms. This is the first term, second term and the third term. Okay. And they are separated by plus and minus sign. Now in the first step we will shift the second term to the third term and the third term to the second term. We will just interchange. Okay, these two. See here. Next step, first term remains in the first term, and see here the sign will also shift. Okay, the sign will also shift this place. 3 by 5 into 1 by 6. Okay, third term became the second term in the second step, and plus 5 by 2 will be at the last. Okay, third term. Now see here, we can take common 3 by 5. 3 by 5 is in the first term and the second term. We can take common 3 by 5. Okay, so now what property is this called? This is called what? Distributive property. Distributive property. Okay, we have taken 3 by 5 common. What is left out? Minus 2 by 3 minus 1 by 6 plus 5 by 2. Now we will take the LCM of 3 and 6. Now what is the LCM of 3 and 6? 6. 6 divided by 3 is 2. 2 into minus 2 is what? Minus 4. 6 divided by 6 is what? 1. 1 into 1 is 1. Plus 5 by 2. 3 by 5 into minus a minus a plus. 4 plus 1 is 5. 4 is bigger, sign is minus, so minus 5 by 6 plus 5 by 2. Now we can see, cancel this 5 and this 5, minus 1 will be left out. This 3 and this 6 we can cancel, 3 2 is 6. So what is left out? Minus 1 by 2 plus 5 by 2. So if we take the LCM, will be 2. 2 divided by 2 is 1. 1 into minus 1 is minus 1 plus 2 divided by 2 is 1. 1 into 5 is 5. So minus a plus a minus 5 minus 1 is 4. Plus 4 because 5 is bigger. By 2, if we cancel it, 2. Okay, this is the answer. 2 by 5 into 3 by minus 7 minus 1 by 6 into 3 by 2 plus 1 by 14 into 2 by 5. So how many terms are there? 3 terms. This is the first term, this is the second term, and this is the third term. So same, we will just replace these two. Okay, we'll just interchange these two. Okay, why? Because here 2 by 5, 2 by 5, both these two numbers are repeated. Okay, so we'll just interchange 2 by 5 into 3 by minus 7 minus, sorry, this will be your plus, this will come this side, 1 by 14 into 2 by 5 minus 1 by 6 into 3 by 2. Okay, now we can take common from the first term and the second term. Now what is common here? 2 by 5 and 2 by 5 is common. So 2 by 5 into 3 by minus 7 plus 1 by 14 minus 1 by 6 into 3 by 2. So this property is called what? Distributive property. Distributive property. Okay, now take the LCM inside the bracket. Okay, so 7 and 14 LCM will be what? 14. This minus will shift the numerator. 14 divided by 7 is what? 2. 2 3s are 6. 14 divided by 14 is 1. 1 into 1 is 1. Minus 1 by 6 into 3 by 2. So 2 by 5 into minus a plus a minus. 6 minus 1 is 5. 6 is bigger, minus sign is there, so minus 5 by 14. 1 by 6 into 3 by 2. Okay, now this 5 and this 5 will be cancelled out. 1 will be left out. 2 7s are 3 2s are. Okay, so what is left out here? Minus 1. Okay, minus 1 is left out in the numerator, and denominator 7 is left out. Here only 1 is left out, and 2 2s are 4. Okay, so now 7 and 4 LCM will be how much? 28. 7 4s are 28. Directly LCM. 28 divided by 7 is 4. 4 into minus 1 is minus 4. 28 divided by 4 is 7. 7 into 1 is
7, माइनस है प्लस 4 plus 7 is 11, 7 is bigger, minus sign is there, so minus 11 by 28. This is your answer. Next is your question number 2, exercise 1.1, question number 2. Write the additive inverse. What? The additive inverse of each of the following numbers. Okay, so we have to find out the additive inverse. Now what do you mean by additive inverse? Suppose a by b is a rational number. Okay, that means a by b के साथ क्या ऐड करने से 0 आएगा. That means what should be added with a by b to get 0? What should be added with a by b? यहाँ पे क्या करना है आपको, बस साइन चेंज करना है. a by b का साइन क्या है, प्लस है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, a by b का माइनस हो जाएगा. That will be equal to 0. ओके, बस आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है. प्लस है तो माइनस देना है, माइनस है तो प्लस देना है. ओके, यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 2/8. 2/8 के साथ क्या प्लस करने के बाद में 0 आएगा. सो 2/8 का साइन क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे मुझे माइनस 2/8 देना पड़ेगा. देन विल बी इक्वल टू 0. सो दिस विल बी योर व्हाट, एडिटिव इनवर्स. ओके, एडिटिव इनवर्स. -5/9, -5/9 के साथ क्या प्लस करने के बाद 0 आएगा, -5/9. अच्छा, 5/9 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5/9. बस 5/9 होगा ना. इसका एडिटिव इनवर्स विल बी व्हाट, 5/9. ओके, दिस इज द एडिटिव इनवर्स. ओके, सी हियर, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस 6/5. ओरिजिनली क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6/5. ओके, सो 6/5 के साथ क्या प्लस करने के बाद में ये 0 आएगा. 6/5 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो -6/5 इज इक्वल टू 0. 6/5 प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6. सो दिस इज द व्हाट, एडिटिव इनवर्स. -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स. यहाँ पे देखो 2/-9 है, यानी -2/9 के साथ क्या ऐड करूंगा तो 0 आएगा. तो 2/9 का साइन क्या है, माइनस. सो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्लस. माइनस होने से प्लस, यहाँ पे भी क्या था, प्लस साइन था, माइनस दिया, माइनस साइन, प्लस हो गया, प्लस साइन, माइनस. ओके, so 2/9 will be the additive, plus 2/9 will be the additive inverse. Same to same, 19/-6, that means -19/6 के साथ क्या ऐड करने से 0 आएगा. 19/6 is equal to 0. That means 19/6 का साइन क्या है, माइनस. सो माइनस के साथ क्या प्लस करने के बाद 0 आएगा, ये plus 19/6. So this will be the additive inverse. Okay. Next, question number 3. Verify that minus of -x is equals to x for some value of x. That is, number 1, we have x equal to what, 11/15. Okay. So first of all, verify में देखो यहाँ पे ये जो है verify में minus of -x equal to x. Okay. That means this is our what, left hand side and this is our what, right hand side. We have to verify that ये जो value है ये दोनों इक्वल है कि नहीं. अगर ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वल है कि नहीं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ -x. ओके, माइनस ऑफ -x. सो x का वैल्यू कितना है, 11/15 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये. सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, बस 11/15. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू माइनस ऑफ -x 11/15, x का वैल्यू दिया गया था, पुट किया तो 11/15 आया. सो नाउ राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, x, ओनली x. सो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 11/15. अब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना था, 11/15, और राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है कितना है, 11/15. सो हम लोग क्या लिखें, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. ओके, हैंस वेरीफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वेरीफाई करना है. x इज इक्वल टू -13/17. सो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड. दोनों को हम लोग को लिखना है. ओके, वी हैव टू प्रूव इट. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी व्हाट, माइनस ऑफ -x, और राइट हैंड साइड विल बी व्हाट, x. ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड. सो x का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करके देखना है कि ये दोनों वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं. सो माइनस ऑफ -x, x का वैल्यू कितना है,
ये तो दोनों माइनस पहले से ही था। x का वैल्यू कितना है, -13/17। ओके, सो यहाँ पे जो दो माइनस साइन है ये वो तो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस साइन बचेगा, सो दैट विल बी योर -13/17। और x राइट हैंड साइड में क्या है, बस x का वैल्यू कितना है यहाँ पे -13/17। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ रहा है -13/17 और राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ रहा है -13/17। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, देयरफॉर left hand side equal to right hand side, hence verified. Okay, number 4, find the multiplicative inverse of the following numbers. Okay, so multiplicative inverse का मतलब क्या होता है, what do you mean by multiplicative inverse? Suppose a by b कोई भी एक रैशनल नंबर है, so इसका multiplicative inverse हम लोग क्या निकलेंगे, मीन्स क्या होगा इसका multiplicative inverse into b by a. That means what should be multiplied with this number to get 1. ओके इस नंबर के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 आएगा। तो ये नंबर के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर का रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, b बाई ए। ओके, सो अगर हम लोग a कैंसिल करें, b कैंसिल करें, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट मीन्स व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर टू गेट 1। ओके, अब देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, -13। ओके, -13, सो -13 क्या है, -13/1। अब देखो हम लोग ये नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर का रेसिप्रोकल, यानी 1 ऊपर जाएगा और -13 नीचे आएगा ना, 1 ऊपर जाएगा -13 नीचे आएगा। सो ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये इक्वल टू क्या होगा, 1, -13 कैंसिल, 1 इक्वल टू 1। सो दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इनवर्स। नेक्स्ट ये नंबर देखो, -13/19। ओके, -13/19 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -13/19 का रेसिप्रोकल को, यानी 19/-13, जो कि इक्वल होगा 1। सो दिस विल बी आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, दिस विल बी आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट 1/5 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा। सो 1/5 के रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/1 ना, 5/1 इज इक्वल टू 1। सो ये जो है, जो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका रेसिप्रोकल, वही होगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 3 जा कितना होता है, 15, 8 7 जा 56। सो ये हमारा एक नंबर आ गया 15/56। सो ये नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, यही सेम नंबर का रेसिप्रोकल इनटू 56/15। सो ये जो होगा, ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके,